नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। वी आर स्टार्टिंग द सेशन नाउ विद द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड गणेशा, गणेश उत्सव विद साउंड हीलिंग। The Anantim team is here. Flow of the session क्या रहेगा? We'll do the Om chanting first, know the science and explore the ancient gifts. ब्रह्मणस्पति सूक्तम will recite and then sound healing. तो ये कल जैसा ही फ्लो रहेगा, सिर्फ थोड़ी नई चीजें आज हम समझेंगे। ओम चैंटिंग से शुरुआत करते हैं। Now we'll be watching a video. एक वीडियो देखते हैं और कुछ नया समझते हैं। Physical being living in a physical world. You are made up of energy and exist in a universe where everything is vibrating energy. You have the ability to send and receive energy. One of the biggest challenges for you is understanding how to live as an energy being in a world where everything is made up of energy. हम सब जो है, सब कुछ, सारी सृष्टि जो है वो वाइब्रेट हो रही है और हम सब एनर्जी है। हम एनर्जी भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ समझना है कि जब ये पूरी सृष्टि एनर्जी है, हम एनर्जी है, तो हमें जीना कैसे है। Every word you speak and every action you take, from the simplest tasks like breathing, walking and eating, to the complexities of your emotions and thoughts, requires energy. These emotions and thoughts, whether positive or negative, carry their own energetic vibrations that can shape your experiences and have an impact on the world around you. And तो हम जो भी कार्य करते हैं उसकी एक ऊर्जा होती है। जो भी शब्द, विचार, भाव के साथ हम जी रहे हैं, उस सब की एक ऊर्जा होती है जो हम एमिट करते हैं। The mastery of your vibrations, you can unlock a world of endless potential. Think of yourself as a transmitter of energy. All the time, you are sending out signals that tell the universe about yourself. These signals can either attract or repel other energetic beings, events and experiences. हम पूरी समय एनर्जी एमिट करते हैं हमारे अलग-अलग कार्यों से, हमारे बीइंग से। तो जो भी हम एमिट करेंगे उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर हमें क्या हम आकर्षित करते हैं या क्या हम हमारे जीवन से दूर कर रहे हैं। Your energetic self radiates anger and frustration. Your physical reality will reflect that as well. Naturally, you draw toward things that align with how you feel and who you are. If you emit an energy of wealth and abundance, your life will reflect that by bringing more wealth and abundance into your physical reality. Similarly, अगर हम समृद्धि के भाव में जी रहे हैं, उसी तरह रह रहे हैं, तो हम समृद्धि को ही आकर्षित करेंगे। If you radiate negative or discordant energy, you are likely to repel experiences that don't match your state of being. Once you understand that your vibrational self attracts similar things, it becomes evident that if you desire a different experience in your life, you need to change the signals you are emitting. कितने लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में जो भी चल रहा है वो कुछ न कुछ थोड़ा हमें चेंज करना है, उसे बेहतर बनाना है। कितने लोग चाहते हैं? तो क्या समझना जरूरी है कि हम एक ट्रांसमीटर की तरह है। जो भी ऊर्जा हम बाहर दे रहे हैं वही हम आकर्षित कर रहे हैं या चीजों को दूर कर रहे हैं। जब हम ये समझने लग जाएंगे तो अगर हम गुस्से के भाव में जी रहे हैं तो हम वही हमारे जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। समृद्धि के भाव में जी रहे हैं तो वही आकर्षित कर रहे हैं।
तो अगर हमें कुछ भी चेंज कर रहा है हमारे जीवन में, तो आज जो हम है वो हमें चेंज करना होगा, तब जाके हम जो हमें चाहिए वो आकर्षित कर पाएंगे। In other words, if you want to attract different circumstances or outcomes, you must adjust your thoughts, emotions, and overall energy to align with what you wish to experience. By consciously changing the signals you send out, you can create a shift in the patterns and experiences that come into your life. You are so much more powerful than you ever imagined. By understanding how to transmit the vibrations of your desired life, you can fundamentally change the way you experience the world and become aligned with your ideal life. Indeed, your thoughts are not just random mental processes. They carry energy and vibrations. Each thought हमारे हर एक विचार में भी ऊर्जा है और वही हम बाहर रेडिएट करते हैं। you generate sets off a specific frequency of vibration in the neurons of your brain. This energetic activity creates a powerful force that aligns with and draws corresponding experiences towards you. In essence, the energy and vibrations emitted by your thoughts act as magnets, attracting and manifesting the essence of what you focus on. तो हम जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं, जिस ऊर्जा में रह रहे हैं, जो जिस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं, वही हम हमारे जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। तो हम जब अब ये साधना कर रहे हैं ब्रह्मणस्पति सुक्तम और साउंड हीलिंग, आवर होल अटेम्प्ट क्या है कि हमें हमारा वाइब्रेशनल लेवल हम बढ़ा रहे हैं। अलग अलग माध्यम हैं इसे बढ़ाने के। तो आज हम ये 4 दिन की जो साधना हम कर रहे हैं, उसमें हम वाइब्रेशंस हमारे एनहांस कर रहे हैं। इसमें और भी तरीके दिए गए, ये वीडियो हम पोस्ट करेंगे ग्रुप पर, सो आप इसे पूरा भी देख सकते हैं। या आपको शेयर करें। या हर सूक्त या मंत्र के कुछ अर्थ भी होते हैं, तो वो भी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि एक्चुअल अर्थ उसका क्या है और गर्भित अर्थ क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले थोड़ा साउंड हीलिंग के बारे में जानेंगे। तो साउंड हीलिंग जैसे हमने कल समझा, अलग अलग हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, नाद की एनर्जी जो वाइब्रेशंस फॉर्म में हमें रिसीव हो रही है। अभी तक हमने क्या किया, अगर आप एक कपड़ा देखते हैं जो पूरा क्रश है, पूरा जिसे इस्त्री की जरूरत है, आयनिंग की जरूरत है, हम उस तरह अगर देखते हैं अपने जीवन को या रिक्वायरमेंट को, दैट वी नीड टू प्योरीफाई, हमें उसे क्लीन करना है। तो हमारा प्रयास वही है कि हम थोड़ी थोड़ी इस्त्री रोज कर रहे हैं, वी आर आयनिंग आवरसेल्फ सो दैट वी फ्लो इन द लाइफ। फिर हमने समझा कि कैसे साउंड हीलिंग से हम पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। इसमें वो नाद पहले प्ले किया जाता है जो हमारे 7 चक्रास पे काम करता है। कल हमने थीटा हीलिंग के बारे में जाना जो हमारे ब्रेन पर काम करता है। फिर हम आज की स्पेशल फ्रीक्वेंसी क्या है वो समझेंगे और फिर बैलेंसिंग ऑफ द ब्रेन के लिए हम जाएंगे। तो डिस ईज क्या है, जब हमारा शरीर ईज में नहीं है तो हम डिस ईज में जाते हैं, मतलब एट ईज नहीं है हम। तो उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का या कोई भी एक भाग का, इंद्रियों का, हमारे प्राणा जो है वो कम हो जाता है। तो नाद के एनर्जी से हम प्राणा को रेज कर रहे हैं और हम ईज की तरफ आ रहे हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इज आवर ओन हीलर। तो नाद के से हम मेक श्योर दैट इट इज एम्पावर्ड और हमें हीलिंग हो रही है। जब हम साउंड प्ले करते हैं, आपने सुना है अब 2 दिन से, आज भी आप सुनेंगे, तो उसके बीच में कभी कभी कुछ साइलेंस गैप भी रहता है, तो वो भी काफी हीलिंग है। उससे एक आकाश जनरेट होता है, एक एनवायरनमेंट। जब भी हम प्योर साउंड सुनते हैं तो उसके बीच का जो वाइब्रेशंस है वो भी एब्जॉर्ब करना बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, वो भी हीलिंग करता है। जैसे अगर आप टेम्पल में जाओ या कोई ऐसी जगह जाओ जहाँ बहुत साधना होती है, तो वहाँ के वाइब्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे, सूदिंग लगेंगे। वही अगर आप हॉस्पिटल जाओ या कोई ऐसी जगह जाओ जहाँ अभी अभी झगड़ा हुआ है और शांति है, तो वो शांति अलग है, और जो साधना की है, जहाँ पर ये सब होता है, वहाँ की शांति अलग है।
जो आकाश निर्माण होता है इस शांति से, वो अलग अलग तरह का होता है। तो जब हम साउंड हीलिंग भी प्ले कर रहे हैं तो उससे एक सूर्य आकाश निर्माण हो रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है इन टर्म्स ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। आज के स्पेशल फ्रीक्वेंसीज रहेंगे 528 हर्ट्ज एंड 531 हर्ट्ज। जब हम ये फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं तो ये नॉर्मल हमारा प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे हैं। वी आर डूइंग एवरीथिंग इन द साउंड हीलिंग प्लस दिस टू फ्रीक्वेंसीज। So 528 frequency is, we'll understand it, what it does। बॉडी को जो है वो सेल्फ रेगुलेट करता है, काम डाउन स्टेट में लाता है। अगर कोई दर्द है, पेन है, तो उसे रिड्यूस करता है, मसल टेंशन एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम सबको बैलेंस और स्वस्थ करता है। 540 हर्ट्ज क्या करता है, हमारे होल बॉडी के सेल्स को रिपेयर करता है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाता है हमारे जीवन में एंड वी फील अनकंडीशनली लव्ड। ये फीलिंग आज आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो 4 पेटल्स है जैसे हमने समझा था चक्रास के। तो आज हम पेटल नंबर 3 में क्या है देखेंगे। पेटल नंबर 3 इज, जैसे हमने कल समझा था कि ये मूलाधार चक्र में जब हम सीड डालते हैं तो उसका ही मैनिफेस्टेशन हमारे बीइंग में, अपर चक्रास में हमें दिखता है। तो इसमें क्या क्या है, टोटल अवेयरनेस एंड विटनेसिंग पावर, टोटल नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ को हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं, ह्यूमिलिटी टू गॉड, विजडम और नॉलेज, ये सब आज हम टैप इन करेंगे। इसके पहले हम अब ब्रह्मणस्पति सूक्तम का मीनिंग जानेंगे और इसको और भी गहराई में हम समझेंगे। किसी भी सूक्त या मंत्र का मीनिंग दो प्रकार का होता है हमेशा। एक मीनिंग वो होता है कि जो लिटरल ट्रांसलेशन जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा मीनिंग होता है जिसको हम गर्भित अर्थ बोलते हैं। तो गर्भित अर्थ जानने के लिए वी हैव टू रीच टू दैट पर्टिकुलर स्टेज। तो नामस्मरण से जब हम मेडिटेटिव स्टेट में हम रहते हैं, तो जो हमें रियलाइजेशन होता है हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो जो हमें अर्थ हमें जो गर्भित अर्थ समझ में आता है, तो वो हम उसको बोलते हैं गर्भित अर्थ। और उसकी फर्स्ट स्टेप क्या हो सकती है किसी भी सूक्त या स्तोत्र को समझने की, कि लिटरल मीनिंग हमें थोड़ा-सा हम ट्रांसलेट करके हम समझ सकते हैं। तो ब्रह्मणस्पति सूक्त क्या है? तो उसमें पीड़ाओं से मुक्ति, धन, आयु सदा हमारे साथ रहे, ऐसे गणेश जी को वरदान मांगा गया है। फिर हमारा सदैव रक्षण करने के लिए बोला गया है। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी शुभ कार्य के पहले पहले हम गणेश वंदना से ही शुरुआत होता है। तो वही उसमें दिया गया है और कहा गया है कि देवत्व की इच्छा करने वाले और इच्छा करने वाला मनुष्य या कोई भी प्राणी मात्र और कहाँ जा सकता है। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वी हैव टू इनिशिएट आवर भक्ति विथ गणेश जी। उसके आगे वो कहते हैं कि मनुष्य युद्ध छिड़ जाने पर भी तुम्हें बुलाता है। तो ये एक कॉमन फीलिंग है कि श्री गणेश बुद्धि के देवता है, तो युद्ध से क्या लेना-देना। लेकिन युद्ध करने के लिए भी बुद्धि होना बहुत ही अनिवार्य है। तो उसमें कहा गया है कि मनुष्य युद्ध छिड़ जाने पर सबसे पहले तुम्हें बुलाता है, और जो यज्ञ करता है उसको भी उसको जो अ, योग्य धन देता है उसको अक्षय यश प्राप्त करता है। उत्तम वीरों से युक्त अपराजित मातृभूमि की प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम उस युद्ध या कार्य को शुरुआत करते हैं। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, इट हैज़ ऑलवेज़ बीन मेंशन्ड कि वी हैव ऑलवेज़ ऑलवेज़ बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन, एंड हमारा बलशाली राष्ट्र हमेशा से ही रहा है। हम इसमें इस सूक्त में अपराजित मातृभूमि की हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारी जो भारत माता है उसका रेफरेंस हमारे ऋग्वेद में भी दिया गया है, ब्रह्मणस्पति सूक्त में भी पहले आया हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं कि
को देवयंतमश्नवज्जनं को, तो उसका मतलब वो कहते हैं कि देवत्व प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के पास ब्रह्मणस्पति आएगा और ब्रह्मणस्पति के आशीर्वाद उसके ऊपर हमेशा से ही रहेंगे। उसके बाद उस अगली ऋचा में कहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, उपक्षत्रम पृंचित हंति राजभिर्भयचित सुक्षितिंदते। इसका मतलब वो कहते हैं ब्रह्मणस्पति क्षात्र बल का संचय करता है, राजाओं की सहायता से शत्रु को मारता है और महाभय महाभय उपस्थित होने पर भी उत्तम धैर्य को धारण करता है। और ये वज्रधारी कहा गया है, ये वज्रधारी है और शत्रु को पराजित करने वाला है। और उसके बाद वी इन्वोक द लॉर्ड गणेश टू ब्लेस अस। तो मतलब लिटरल ट्रांसलेशन में भी आया हुआ है कि अलग-अलग श्री गणेश के जो आयाम हैं उसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है। तो आज हम इतना समझते हैं, इसके बाद हम ब्रह्मणस्पति चैंटिंग की तरफ हम बढ़ेंगे। रोज की तरह बैठना है, आंखें बंद करनी है। जिनको ब्रह्मणस्पति आता है वो म्यूट में बोल सकते हैं, बाकी रिसीविंग मोड में रहना है। हरि ओम सोमानौ स्वराणौ कृणहि ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तय्यौ शिजः यो रेवान्यो अमिवहाव स्वित्पुष्टिवर्धनः सनस्य शक्तो यस्तुरः मानशंसो अररुषो धूर्तिः प्रणङ्मर्त्यस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते सगा वीरो नरिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः सोमो हिनोति मर्त्यम् त्वन्तं ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्रस्य मर्त्यं दक्षिणापात्वंहसः उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वयमहे उपप्रयन्तु मरुतः सुदानव इन्द्रप्राशुर्भवास च त्वामिद्धि सहसस्पुत्रमर्त्य उपब्रूते धने हिते सुवीर्यं मरुतास्वश्व्यन्दधीतयो वाचके प्रैतु ब्रह्मणस्पतिप्रदेव्यैतु सूनृता अच्छा वीरं नर्यं पङ्क्तिराधसन् देवा यज्ञन्नयन्तु नः यो वागते ददाति सूनरन्वसु सुदत्ते अक्षिते श्रवाः तस्मायणां सुवीरामाय जामहे सुप्रतूर्तिमनेहसं प्रनूनं ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदत्युक्थ्यं यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो आर्यमा देवाओकांसि चक्रिरे तमिद्वोचेमा विदथेषु शम्भुवं मन्त्रं देवा अनेहसम् इमां च वाचं प्रतिहर्यथा नरो विश्वे द्वामावो अश्नवत को देवयन्तमश्नवज्जनं को वृक्तबर्हिषं प्रप्रदाश्वान् पस्त्याभिरस्तितान् तर्वावत्क्षयन् दधे उपक्षत्रं पृञ्चीत हन्ति राजभिर्भये चित्सुक्षितिं दधे नास्य वर्तान तरुता मोहाधने नार्भे अस्ति वज्रिणाः गणानां त्वां गणपतिं हवामहे कविं कविनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् देवाशित्ते असुर्यप्रचेतसो बृहस्पते यज्ञं भागमानशुः उस्रा इव सूर्यो ज्योतिषामहो विश्वेषामिज्जनिता ब्रह्मणामसि आविबाध्या परिरापस्तमांसि सज्ज्योतिष्मन्तं रथमृतस्य तिष्ठसि बृहस्पते भीमममित्रदम्भनं रक्षोहणं गोत्रभिदं स्वर्विदं सुनीतिनिर्भयसेत्रायसे जनय्यस्तुभ्यं दाशान्नतमो अश्नवत ब्रह्मद्विषस्तपनो मन्युमीरसि बृहस्पते महितत्ते महित्वनं न तमोहो न दूरितं कुतश्चन नारातयस्थितिरूर्नद्वयामिनाः विश्वायदस्माद्ध्वरसो विबाधसे यंसो गोपा रक्षसि ब्रह्मणस्पते त्वन्नो गोपः पथिकृद्विचक्षणस्तव व्रताय मतिभिर्जरामहे बृहस्पते यो नो अभ्यवरो दधे स्वातं मर्तुदुच्छुना हरस्वती उत वा यो नो मर्चयादनागसोराति वा मर्तः सानुको वृकाः बृहस्पते अपतं वर्तयापथः सुगन्नो अस्यै देववीतये कृधि त्रातारं त्वा तनूनां हवामहे
वस्परतरधिवक्तारमस्मयुं बृहस्पते देवनिदो निबर्हय मादुरेवा उत्तरं सुम्नमुन्नशन्न त्वया वयं सुहृदा ब्रह्मणस्पते स्पार्हा वसु मनुष्या दधीमहि यानो दूरे तळितो या अरातयोभिसन्ति जम्भयाता अनप्नसाः त्वया वयमुत्तमं धीमहे वयो बृहस्पते प्रप्रीणासस्नीनायुजा मानो दुःशंसो अभिदिप्सुरिष्यत प्रसुशंसामतिभिस्तारिषीमहि अनानुदो वृषभो जग्मीराहवं निष्टप्ता शत्रुं पृतनासुसासैः असि सत्यरुणया ब्रह्मणस्पत उग्रस्य चिद्दमिता वीळुहर्षिणाः अधैवेन मनसा योरीषण्यति शासामुग्रो मन्यमानो जिघांसति बृहस्पते मा प्रणक्तस्य नो वधो निकर्ममन्युन्दुरेवस्य शर्धतः भरेषु हव्यो नमसोपसद्यो गन्तावाजेषु सनीता धनन्दनं विश्वाइदर्यो अभिदेप्स्वो मृधो बृहस्पतिर्विववर्हारथायवा तेजिष्ठया तपनीरक्षशस्तपये त्वानिदेदधिरे दृष्टवीर्यम् आविस्तत्कृष्वयदसत्य उक्थ्याम् बृहस्पते विपरिरापो अर्दया बृहस्पते अति अदर्यो अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्दीदयच्छव सरुत प्रजात तदस्मासु द्रवीणं देहि चित्रम् मानस्तेनेभ्यो ये अभि बृहस्पते नीरामिणो रिपवोन्नेषु जागृदुः आदेवाना मोहते विव्रयो रुधि बृहस्पतेन परस्साम्नो विदुः विश्वेभ्यो हित्वा भुवनेभ्यस्परि त्वष्टा जनत्साम्नः साम्नः कविः सरुणचिद्रुणया ब्रह्मणस्पतिर्द्रुहो हन्तामः ऋतस्य धर्तरि तव श्रिये व्यजिहीत पर्वतो गवाङ्गोत्रमुदसृजो यदाङ्गिरः इन्द्रेण युजातमसा परिवृतं बृहस्पते निरपामौब्जो वर्णवम् ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधितनयञ्च जिन्वा विश्वन्ताद्भाद्राय्यद्वन्ति देवा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः सेमाम वेड्ढे प्रभृतैशीषेया विधेम नवया महागिरा यथा नो मीढ्वांस्तव ते सखा तव बृहस्पते शेषाधः सोतनो मतिम् यो नन्त्वान्यन मन्योज सोता दर्दर् मन्युना शम्बराणिवि प्राच्चावयदच्युता ब्रह्मणस्पतिराचा विशद्वसुमन्तं विपर्वतं तद्देवानां देवतमाय कर्त्वमश्रद्धन् दृढा व्रोदन्तविवलिता उदगाजनभिनद्ब्रह्मणा बलमगुहत्तमो व्यचक्षयत् स्वाहा अश्मासमवतं ब्रह्मणस्पतिर्मधुधारमभियमोजसा तृणत तमेव विश्वे पपिरे स्वरदृशो बहुसाकं सीसिचोरुत्समुद्रिणम् सनाता काचिद्भुवना भवीत्वा माद्भिश्शरद्भिर्दुरो वरन्तवः अयतन्ताचरतो अन्यदन्यदिद्याचकार वयुनां ब्रह्मणस्पतिः अभिनक्षन्तो अभियेतमानशुर्निधिं पणिनां परमं गुहाहितं ते विद्वांसः प्रतिचक्षानृता पुनर्यत उ आयन्त दुरीयुराविशम् ऋतावानः प्रतिचक्षानृता पुनरात आथस्तु कवयो महस्पथः ते बाहुभ्यां धमितमग्निमश्मनि न किश्योऽस्त्यरणो जहुर्हितं ऋतज्येन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पतिर्यत्र वष्टे प्रतिदश्नोति धन्वना तस्य साध्वीरिषवो याभिरस्यति न चक्षसो दृशये कर्णयोनयः ससन्नयः सवीनयः पुरोहितः ससुष्टुतः सयोधे ब्रह्मणस्पतिः चाक्ष्मो यद्वाजं भरते मतिधनादिप्सूर्यस्तपति तप्यतुर्वृथाः विभो प्रभु प्रथमं मेहनावतो बृहस्पते सुविदत्राणिराध्या इमा सातानि मेऽन्यस्य वाजिनो येन जना उभये भुञ्जते विशाः यो वरे वृजने विश्वथा विभुर्महामूरणवशवसाववक्षिता स देवो देवान् प्रतीपप्रथे पृथु विश्वे दूता परिभूर्ब्रह्मणस्पतिः विश्वं सत्यं मघवानायुवोरिदा पश्यन् प्रमीनन्ते व्रतं वाम् अच्छेन्द्रा ब्रह्मणस्पति हविर्नोन्नयुजेव वाजिना जिगातम
उताशिष्ठा अनुशृण्वन्ति वह्नः यः सभेयो विप्रो भरते मतीधना वीळुद्वेषा अनुवशरुणमादिभिः सह वाजि समिथे ब्रह्मणस्पतिः ब्रह्मणस्पतेरभवद्यथा वशं सत्यो मन्युर्महि कर्मा करिष्यतः योगा उदाजत्स दिवे विचा भजन्महिमरीतिश्यवसा सरत्पृथक् ब्रह्मणस्पते स्वयमस्य विश्वः राह्यस्याम्रथ्यो वयस्वतः वीरेषु वीराँ उपवृन्दिनस्त्वं यदीशानो ब्रह्मणा वेशी मे हवम् ब्रह्मणस्पते तुमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधित न यञ्च जिन्वा विश्वन्तद्भाद्रं यद्वन्ति देवा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः इन्धानो अग्निं वनवद्वनश्यत कृतब्रह्माशुषुवद्रात हव्यैत जाते न जातमति सप्रसरश्रुते यञ्युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः वीरेभिर्वीरान् वनवद्वनशतो गोभीरैं पपृथ बोधतित्मना तोकञ्च तस्य तनयञ्च वर्धते यञ्युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः सिन्धुर्नक्षोदक्षिमीमावृगायतो वृषेव वध्र्यरम्भिवष्ट्योजसा अग्नेरिव प्रसीतिर्नाह वर्तवे यञ्युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः तस्मा अर्षन्त दिव्या असशतः ससत्वभिः प्रथमो गोषु गच्छति अनिभृष्टत विशर्हन्त्योजसा यञ्युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः तस्मा इदु विश्वे दुनयन्त सिन्धवो छिद्रा शर्म दधिरे पूर्णे देवानां सुम्ने सुभगस्येधते यञ्युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः रुचिरिच्छंसो वनवद्वनश्यतो देवयन्निददेवयन्तमभ्यसत सुप्रावीरिद्वनवत्पृत्सुदृष्टनै यजुवेद यजोर्विभजाति भोजनं यजस्व वीरप्रविहीमनायतो भद्रं मनः कृणुष्व रुद्रतूर्ये हविष्कृणुष्व सुभगो यथा ससी ब्रह्मणस्पतेरव आवृणीमहे सैज्जनेन सविशास जन्मना सपुत्रैर्वाजं भरते धनानृभिः देवानाय पितरमा विवासति श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिं यो अस्मै हव्यै धृतवद्भिरविधत्प्रतं प्राचा न यति ब्रह्मणस्पतिः उरुषते मौहसो रक्षतिरिषोः शीदस्मा उरुचक्रिरद्भूतः तमु ज्येष्ठं नमसा हविर्भिस्तु सेवं ब्रह्मणस्पतिं गृणीषे इन्द्रौ श्लोको महिदैव्यस्य शक्तयो ब्रह्मणो देवकृतस्य राजा इयं वां ब्रह्मणस्पते सुरुक्तिर्ब्रह्मेन्द्राय वज्रणेयकारी अविष्ठन्दियो जुगृतं पुरन्धीर्जयस्तमर्यो वनुषामरातिः चत्तो इतश्चत्तामुतः सर्वा भ्रूणान्यारुषिः अराय्यं ब्रह्मणस्पते तीक्ष्ण शृङ्गो दृशन्निः अधो यद्दारुप्लवते सिन्धो पारे अपूरुषं तदारभस्वदुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम् अग्निर्येन विराजति सूर्यो येन विराजति विराज्येन विराजति तेनास्मान् ब्रह्मणस्पते विराजसमिदं कुरु। अभी हम साउंड हीलिंग के लिए जाएंगे।
I am willing to let go of all fears, worries, and situations related to money, career, safety, and security. I know that I am perfectly protected and that all my needs are abundantly covered. I release all my desires and craving to the light. I renounce all fears and negative thoughts that prevent me from feeling at peace, harmony, and balance. All my thoughts and emotions flow harmoniously. All my desires are perfectly balanced. I fully accept my inner power. It's okay to be in control of my power and use it for my ultimate good and the good of others. My heart is open and flowing freely with love for myself and others. I allow myself to give and receive love easily. I lovingly speak my truth and allow my higher self to speak through me. I use my words to create beauty in the world. My vision is perfectly ordered and illuminated by love. I trust my intuitions. I am balanced and harmony with the whole universe. Thank you, thank you, thank you. Gently taking little time, we can move our fingers a little. Turn to the one side of the body, करवट लेंगे. घुटनों के बल पैरों को मोड़कर घुटनों को हो सके उतना हृदय के पास ले आएंगे. बिल्कुल एक दिव्य बालक की तरह जो धरती माँ की कोख में है. खुद को देखिए कि आप बिल्कुल उसी तरह हैं. हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सभी एरिया में आप समृद्ध हैं. सभी को साथ लेकर चल रहे हैं. देखिए कि गणेश जी की कृपा हम पर है. हमें उनके ढेरों ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं. मन ही मन उन्हें प्रणाम करते हुए mentally just bow down to this divine energy. समय लगाते हुए, taking your time, you can rise up and sit. धीमे से सिर नीचे की तरफ झुकाते हुए एक बार धीमे से आंखें खोलेंगे और दोबारा उन्हें बंद करेंगे. जब भी हमें कंफर्टेबल महसूस हो, हम आंखें खोल सकते हैं. We can open our eyes now